Welcome to my channel. Chemistry is fun with Braj Patel. Today I'm Rajendra Kumar Patel, PGT Chemistry, GNV Golaghat, Assam. So students, today we are going to discuss about valence bond theory. It's related to chemical bonding and molecular structure. Also, it is very important for competition purpose. So let's start our discussion. First, in this lecture we will see first introduction of the valence bond theory, after that type of interaction between atoms, orbitals, overlap concept, types of overlapping, these are axial overlapping and parallel overlapping, and after that the difference between sigma and pi bond. So first is introductory part. So the full form of valence bond theory, VBT, it is valence bond theory. V for valence, B for bond, and T for theory. So the Lewis concept we have studied earlier. It helps in writing the structure of molecules, but this concept fails to explain the formation of chemical bond, and also it doesn't give any reason for the difference in bond dissociation enthalpies and bond lengths. It also gives no idea about the shape of polyatomic molecules. So simple, the Lewis structure, it says that the electrons which are present in valence shell, they are represented in the form of dots. Okay, so that was the Lewis concept. But this Lewis concept, it is not explaining the type of bond, which type of bond is formed. Is it covalent bond, ionic bond, coordinate bond, which type of bond it is not explaining. And also it gives no idea about the shape of polyatomic molecules. According to Vesper theory, we have seen in Vesper theory the molecules, they have shape linear, trigonal, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, octahedral, and so many T-shaped band. So many more structures are there. So this Lewis concept, it doesn't explain any shape of molecule. Okay. Similarly, the Vesper theory, it gives the geometry of simple molecules, but only theoretically. Theoretically means we have to solve some dimensional problems. Means if the orbitals are oriented in x-axis, y-axis, and z-axis. So this Vesper theory, it is not giving any explanation about the axes. Means in x-axis, y, or z. So this theory, okay, it explains the geometry of some simple molecules, but it is only theoretically. Okay, it's not practically. So, and also it has some limited applications. So to overcome these limitations of Lewis concept and Vesper theory, the new term, it was introduced. This term was the quantum mechanical principles, means quantum theory. So when scientists solve the quantum theories by the approximate method and perturbation method, so many more methods are there. So by these methods, the shape of the molecule, it was explained, and this was the practically means if we are saying that the shape of the molecule is tetrahedral, then why it is tetrahedral, why it's not square planar. So Vesper theory, it is not giving the answer. Means if the central atom is 1, means if it is mx4 type complex, then why the shape is only tetrahedral, why it's not square planar. If the shape is the formula is AB5, then why it is trigonal, bipyramidal, why it is not pentagonal. If the complex formula, compound formula is AB6 type, then why it is octahedral, not it's a hexagonal. So these types of questions are there. So Vesper theory doesn't give the correct answer for these reasons. Okay, so we use quantum approach or quantum mechanical principles. So these two theories based on quantum mechanical principles, so these two theories are valence bond theory, which is known as VBT, and molecular orbital theory. So let's see, first in this session we will see the valence bond theory. So let's start. The valence bond theory, short form is VBT, it was introduced by Hitler and London in the year 1927 and developed further by Pauling and others. A discussion of the valence bond theory, it is based
on the knowledge of atomic orbitals. Okay, you know atomic orbitals, these are s orbital, p orbital, d orbital, and some are more are there. So based on atomic orbitals, electronic configuration of elements, the overlap criteria of atomic orbitals. So simply, now in simple terms, valence bond theory, this theory is based on the interaction of atomic orbitals. Okay, so let's see how the atomic orbitals interact with each other, or simply we can say how atoms they interact with each other. So let's start. Type of interaction between atoms. So see, this is an atom, this is another atom. So these two atoms are separate. Okay, now this is the nucleus of first atom, suppose it is Na, and this is the nucleus of second atom, suppose it is Nb. This one is the electron of first atom, so it is Ea, and this is the electron of second atom, the name is Eb. So the type of interaction between atoms, we are discussing about the types of interaction. So see, first, when these atoms are separate, they are far away from each other. So there are two types of interaction, means interaction, it may be attraction, it may be repulsion. Okay, so first, in separate or isolate conditions, first attractive forces, when the atoms are separate, there are two types of attractive forces. First one is old force between Na and Ea, because nucleus it is attracting electron, so this is the attractive force between Na and Ea. Similarly between Nb and Eb, so this is the interactive force. This is old force. Why old force? Because simple, the atoms are separate. Now when these atoms are going toward close to each other, now they are moving towards each other, so in this condition the new forces between these two atoms, when they are approaching towards each other, so new forces, these are attractive force and repulsive force. So see, first Na and Nb means where? Here, Na and Eb, since nucleus is positive charge, Eb electron is negatively charged, so there will be attraction. So this is the attractive force. Okay, and second between Nb and Ea, this one is second attractive force. So now here we have two types of forces, old attractive force and new attractive force. Old between the nucleus and the electrons of the same element, and the new attractive force between nucleus and electrons of different elements. Now if there is new attractive force, then there will be repulsive force also. Okay, and this repulsive force is between Na and Nb. You can see here, because Na it is positively charged and Nb is also positively charged, so this is the repulsive force. And also between Ea and Eb, this one is also repulsive force, because these two are negatively charged. So positive charges, they will repel each other, negative charge, they will also repel each other, but opposite charges, they will attract each other. So in such conditions, when two atoms are getting close, so there two types of forces are there, attractive force and repulsive force. So now the question is, if there is attractive force and repulsive force, so will the atom come close to each other or they will go away? So they will come close to each other. Why? Because in this condition, we will talk about the magnitude of force. You can see here four types of attractive force and two types of repulsive force. So definitely here attractive force is stronger than repulsive force. So atoms, they will come close to each other, but after some distance. Okay, means there will be some distance between these two atoms, means only to some extent the atoms can come close to each other. See here, suppose this is the radius of first atom, this one is 53 pm. So if these two atoms, they are just contacting each other, okay, means you can see their circumferences, these circumferences are just contacting each other. Suppose these are two balls,
So when you try to bring the two balls closer, then you can touch only their outer surface. So in such conditions, the bond length, it should be how much? If the radius is 53, then the bond length, it should be how much? The bond length should be 106. But in this condition, the bond length is 74 pm. So how is it possible? Means, now are you getting my question? The question is, if the atoms, they are just contacting each other, then the distance, it should be 106 pm, but the bond length is actually 74 pm. So it means the bond length is reducing. If the bond length is reducing, so definitely atoms, they are merging with each other. There's some part is merging, that's why the distance is decreasing. So we will see why this is happening, why the atoms are merging, why they are overlapping. So let's try to find the answer. Orbital overlap concept. So in orbital overlap concept, when two atoms approach each other, partial merging of two atomic orbitals takes place, which is known as overlapping of orbitals. So in previous slide, you see the two atoms, they are coming close to each other, so the radius, it should be 106 pm, but it is actually 74 pm. It means what? It means there are some parts is merging. So the merging of that orbital, it is known as overlapping of orbital. And now why the orbitals are merging? Because electrons, they are found in orbitals, and in chemical reaction we know electrons are taking place. So if electrons are taking place, it means orbital will take part. So if the electrons are sharing, if they are being shared, then orbitals, it will be merged. So when two atoms approach each other, partial merging of two atomic orbitals take place, and this is known as overlapping of orbitals. ओके, सिंपल इसको समझना है. समझना क्या है? एटम, दो एटम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही देखते हैं हमने कोवेलेंट बॉन्ड में. तो जब इलेक्ट्रॉन सब कहाँ मिलेंगे? ऑर्बिटल्स में. तो यदि इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, क्योंकि यदि एटम एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, और यही ओवरलैपिंग होती है, overlapping of orbitals. See, this is the radius of first atom, which we were discussing in previous slide. Here we will see it in detail. The radius of this atom is 53 pm picometer. When these two atoms, they come just close to each other, सिर्फ हम उनको क्या कर रहे हैं? टच करा रहे हैं. ओके, सो जब हम सिर्फ उनको टच करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में रेडियस कितना होना चाहिए? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये डिस्टेंस होना चाहिए था. देखो, दोनों के न्यूक्लियस को जब आप मिलाएंगे तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 106 pm पिकोमीटर, क्योंकि जस्ट हमने उनको कांटेक्ट में रखा है. लेकिन प्रैक्टिकली रेडियस कितना मिला इनके बीच में? ये प्रैक्टिकली रेडियस मिला है 74 pm. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पार्ट्स जो है, कुछ ना कुछ एरिया जो है वो ओवरलैप हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेंस जो मिल रहा है आपको. ओके, तो ये लेंस टाइप का बीच में जो मर्ज एरिया दिख रहा है, ये मर्ज एरिया क्या है? यहीं पर बॉन्ड बनेगा. अब यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो यहीं पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. ओके, ऑर्बिटल्स आर गेटिंग ओवरलैप इन दिस एरिया. सो इससे एक चीज़ क्लियर है कि ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, और ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तभी एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे. सो सी, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर बनाना है तो उनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा. ये कैसे होता है तो ये हम आगे देखेंगे. सो सिंपल, जब ओवरलैपिंग होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग होगी. देन नेक्स्ट थिंग इज the extent of overlapping decides the strength of a covalent bond. The greater the overlapping, the stronger is the bond formed between two atoms. Meaning ये हुआ कि ओवरलैपिंग, यदि ओवरलैपिंग को आप क्या समझ सकते हैं? सिंपल, आप हैंडशेक करिए. ओके, ओवरलैपिंग को और कुछ नहीं समझना है, सिर्फ हैंडशेक करना है.
तो यदि आपने सिर्फ फिंगर टिप्स से टच किया है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब थोड़ा सा फिंगर को ओवरलेप करें तो बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और दोनों एक दूसरे के हाथ को बहुत अच्छे से पकड़िए। ओवरलेपिंग यदि ज़्यादा हो रही है तो आपके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल सा वही कंसेप्ट है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलेपिंग इट डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ग्रेटर ओवरलेपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। सो दिस इज द ऑर्बिटल ओवरलेप कंसेप्ट। तो इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग पेयर्ड इट मीन्स देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गेटिंग ओवरलेप। तो जब ओवरलेपिंग होगी तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ओके, सो now we will see the directional properties of covalent bonds. So directional property से क्या मतलब है कि जब covalent bond बनेगा, so we all know this thing very well that covalent bond it is formed by the sharing of electrons. तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन से आएगा, कहाँ हमको अपना इलेक्ट्रॉन रखना है, कहाँ सामने वाला अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, दोनों ही एलिमेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखते हैं इक्वल नंबर पे, तो डायरेक्शन हमको मालूम होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन कैसे मालूम होगी, इसी को हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। सो सी, सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर समझेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर होता कैसा है। So in orbitals you see this one is Z, this one is X, this one is Y। तो जब Z एक्सिस में ऑर्बिटल्स के लोब्स रहेंगे तो इसको हम कहते हैं PZ। PZ का स्ट्रक्चर कैसा है कि जब ये डंबल है, ये डंबल कहाँ रहेगा, Z एक्सिस में रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद PX कैसा होगा, तो PX के लिए क्या है, ये इस टाइप से PX रहेगा। और PY कैसा रहेगा, PY इसमें यहाँ पर रहेंगे लोब्स। तो ये तीन जो हमारे पास लोब्स हैं इनमें अब ये भी हमें मालूम है कि यहाँ पर होता है पॉजिटिव, यहाँ पर होता है नेगेटिव, ये होता है +x, यहाँ पर होता है -x, क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स इसी टाइप से हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को हमने रेड कलर से दिखाया है और नेगेटिव को किससे दिखाया है, ग्रीन कलर से। तो जहाँ पर भी हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डंबल शेप है, तो डंबल शेप में हम ओवरलैपिंग दिखाने जा रहे हैं। तो रेड कलर इसको समझना हमको पॉजिटिव एंड और ग्रीन कलर को समझना है नेगेटिव एंड, तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग को समझ सकते हैं। सो सी, फर्स्ट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इन पॉजिटिव ओवरलैपिंग फर्स्ट वी विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, तो pz ये होता है एक्सिस में, ठीक है, एक्सिस में होगा तो ये होगा pz। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट pz इसका भी पॉजिटिव लोब और सेकेंड pz इसका भी पॉजिटिव लोब। लोब मतलब क्या, ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, लोब, LOPE। तो ये हो गया पॉजिटिव लोब और ये हो गया नेगेटिव लोब। तो हमारे पास दो लोब्स हैं, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। ओके, सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होगी, ये पॉजिटिव लोब्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक का पॉजिटिव लोब और एक का नेगेटिव लोब। तो ये हो गई नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इसमें से डायरेक्शन हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब और एक ऑर्बिटल का नेगेटिव लोब, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो डायरेक्शन हमको फिक्स हो रही है कि ये x +x डायरेक्शन से जा रहा है कि -x डायरेक्शन से जा रहा है। देन सेकेंड हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। s ऑलवेज पॉजिटिव लोब है, क्योंकि s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल है, मतलब इसको हम ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव और 2pz में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, 2pz के सिवा हम px py भी ले सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होगी pz और ps में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग है, तो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ओवरलैपिंग है, तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालें, प्लस और प्लस इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो या फिर माइनस और माइनस इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन, तो इनका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमको मिलता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और यदि प्लस माइनस
या फिर माइनस प्लस, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ये इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गए अभी पीजेड और पीएस के बीच में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी जेड में तो हमने देख लिया पी जेड के बीच में कैसे होगा, और पी और एस के बीच में। अब हम देखते हैं पी एक्स, पी वाई के बीच में कैसे होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा कॉम्बिनेशन, इस टाइप से। ये है पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, एक का प्लस एक्स और दूसरे का भी प्लस एक्स ओवरलेप कर रहे हैं, फिर नीचे एक का माइनस एक्स और दूसरे का भी माइनस एक्स ओवरलेप कर रहे हैं। ये हो गया इनका प्लस एक्स और ये हो गया इनका माइनस एक्स। ठीक इसी टाइप से माइनस एक्स और माइनस एक्स में ओवरलेपिंग हो रही है, यहाँ पर प्लस एक्स और प्लस एक्स में। तो ये है पॉजिटिव ओवरलेपिंग, क्योंकि देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद सेकेंड ये हम देखेंगे पी वाई के बीच में। तो पी वाई का पहले हमको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, और पी वाई का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जब हम 3 एक्सिस बनाते हैं तो पी वाई कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक इसी टाइप से इसमें जब आप इसके एक्सिस बनाएंगे तो पी वाई यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये देखो इन दोनों में क्या है, दोनों ही यदि पॉजिटिव हैं तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, प्लस वाई और प्लस वाई के बीच में। तो प्लस वाई और प्लस वाई के बीच में ओवरलैपिंग होगी, वो है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो फिर से कलर आप देख सकते हैं, रेड कलर, तो ये हो गया प्लस वाई के बीच में, यहाँ पर माइनस वाई के बीच में। तो ये दोनों ही ओवरलैपिंग कैसी हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और निगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी, तो निगेटिव ओवरलैपिंग में ये हम देखते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी, पी एक्स का प्लस और दूसरे पी एक्स का माइनस, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, ये हो गया हमारे पास पी एक्स, ये हो गया प्लस एक्स और ये हो गया माइनस एक्स। और दूसरे में क्या होगा, ये प्लस एक्स कहाँ है, यदि ये इस तरीके से एक दूसरे से अप्रोच करते हैं कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, नेगेटिव कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया प्लस एक्स और माइनस एक्स के बीच में नेगेटिव, माइनस और प्लस के बीच में नेगेटिव। तो ये है नेगेटिव ओवरलैपिंग। पी वाई में भी यही होगा कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो ये एग्जांपल किसका है, नेगेटिव ओवरलैपिंग का। फिर इसके बाद हम देखते हैं जीरो ओवरलैपिंग कब होगी। तो जीरो ओवरलैपिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कॉम्बिनेशन कैसा हो, तो ये आपको मालूम है x का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने x का स्ट्रक्चर देख रखा है, ये x ऐसा होता है। यहाँ यदि s आएगा तो भाई वो किसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, उसकी किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है प्लस, यहाँ पर दिख रहा है ये माइनस, तो ये है क्या एक्चुअली, ये जीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर इसी टाइप से नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनके बीच में, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं हम px और py के बीच में, कि ये px ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, और py ये थर्ड एक्सिस में है। तो इनके बीच में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, इनके बीच में तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। इन सब का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि यदि पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड तो दोनों में बनेंगी, पर एक में स्टेबल होगा, एक में अनस्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा, पॉजिटिव में, अनस्टेबल कब होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से हम बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर है कि स्टेबल बॉन्ड बनने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स कौन सी डायरेक्शन से उनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मीन्स दैट डायरेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट द ओवरलैपिंग it becomes positive overlapping. If there is positive overlapping, the bond will be stronger, the molecule will be stable. If the bond is weaker, means negative overlapping, then molecule will be unstable. And zero overlap means the existence of molecule, it is not possible. So how the molecules can combine with each other, pz can combine only with pz, px can combine with px, py can combine with py. It's not possible that px combines with py, this results zero overlapping. Px and py zero overlapping, px and pz zero overlapping. So the direction it should be
fixed. Okay, so that's all for directional properties. Now we will see types of overlapping. First is एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल्स में कौन कौन सी ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी और कौन सी ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, निगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें भी होगा बट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और जीरो ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग कब होगी? जब दोनों ऑर्बिटल्स कहाँ से आएंगे? एक्सिस के थ्रू आएंगे। सो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. Such covalent bond is called sigma bond and such overlapping takes place by three ways. तो देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर रखना है, और ये कंसेप्ट क्या है कि जो भी ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस के थ्रू आएंगे। एक्सिस के थ्रू आने का मतलब, तो इस पर हमने अभी तक जो ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो ये देखते हैं हम इनमें कि एक्सियल ओवरलैपिंग ये कौन से तीन तरीके से हो सकती है। फर्स्ट ये हम देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग। एस का शेप आपको मालूम है स्फेरिकल, सेकेंड एस का भी शेप स्फेरिकल है, तो स्फीयर तो कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? टू हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और एस ऑर्बिटल का शेप आपको मालूम है स्फेरिकल होता है, ठीक है। फिर एस पी ओवरलैपिंग ये कैसे होगी? सो एस पी ओवरलैपिंग में दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड वन ऑफ द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम। तो इनका देखिए एग्जांपल, ये हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया सेकेंड एस ऑर्बिटल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करनी है। तो ये स्फेरिकल है, इसमें तो प्लस माइनस वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें ओवरलैपिंग किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है। तो जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो ये इनका एक जो एरिया है वो मर्ज हो जाएगा। तो ये जो आपको पिंक एरिया दिख रहा है, ये पिंक एरिया क्या है? इनका मर्ज एरिया है, इसी को हम कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया। कोवेलेंट बॉन्ड इसी पिंक एरिया में बनेगा। तो जितना पार्ट मर्ज हो रहा है उसी पार्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कि हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग, इसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड स्फीयर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर एस पी ओवरलैपिंग, ये किसके बीच होगी? एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। ये दोनों कैसे होने चाहिए? हाफ फील्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में होना चाहिए, क्योंकि ऑर्बिटल कंसेप्ट में आपने सेकेंड यूनिट में रूल्स पढ़े हैं, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, यदि वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अलग अलग एलिमेंट्स के होना चाहिए। और जब बॉन्ड बनेगा, अलग अलग एलिमेंट्स कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं? जब ऑर्बिटल कैसा हो? हाफ फील्ड हो। तो इनमें एस और पी, इनके बीच में ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये पी जेड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यदि पी जेड होता है तो इस टाइप से इसमें ओवरलैपिंग होगी। यदि हम इसी में देखिए, हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक एक्सिस, इसमें ये है पी जेड, ये है पी एक्स और ये है पी वाई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास जेड एक्सिस। इस जेड एक्सिस में यदि एस ऑर्बिटल यहाँ से आता है तो भी ये एक्सिस के थ्रू ही आया है। एस का तो कोई एक्सिस नहीं है, पर ये जेड एक्सिस के थ्रू आया, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा होगा? सिग्मा। यदि ये सेकेंड जो ऑर्बिटल है, अब हम किसको बनाते हैं? एक्स को। तो एक एक्स किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है एस ऑर्बिटल की, तो फिर से ये सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्यों बनेगा सिग्मा बॉन्ड? सीधा सा रीज़न है इसका सिग्मा बॉन्ड बनने का कि ये भी एक्सिस के थ्रू ही है। तो ये भी एक्सिस के थ्रू बन रहा है, ये भी एक्सिस के थ्रू बना। और अब जेड में एक्स, वाई में देखिए, वाई में ये ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पर से एस ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में से कोई भी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कोई भी ओवरलैपिंग करे, वहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग होगी। और यही है 2 वेज ऑफ ओवरलैपिंग। तो इन दोनों का ही रिजल्ट क्या मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा? जब ओवरलैपिंग एक्सिस के थ्रू होगी। तो एस एस हो गया,
sp हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसी होगी। तो ये है pz ओवरलैपिंग। अब pz में क्या है, तो जब हमने p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग देखा, तो यहाँ पर सिंपल सा इसको समझाने के लिए हम डायग्राम देख लें, आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बनाया हमने एक p ऑर्बिटल, इसमें आपको मालूम है ये हो गया pz, ये हो गया px और ये हो गया py। सेकेंड सेम इसी टाइप से p ऑर्बिटल रहेगा, ये हो जाएगा pz, ये हो गया px और ये हो गया py। तो जब दोनों ऑर्बिटल्स क्लोज आएंगे तो सिर्फ ये दोनों ही कांटेक्ट में आएंगे। एक्सिस के थ्रू सिर्फ ये दो ही आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं एक्सिस के थ्रू, तो सिंपल से इसको हम देखें, ये हमने यदि एक ऑर्बिटल बनाया है तो दूसरा ऑर्बिटल, ये इसमें मैं ये ऑर्बिटल बना रहा हूँ, तो जब दूसरा ऑर्बिटल आएगा तो वो इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये इस टाइप से इसके ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये एक्स हो गया, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो इनमें सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट दिख रहा है हमको, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा पार्ट दिख रहा है जो कि एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है। इनके छोड़ करके आप इनको कितना भी क्लोज लाएंगे, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनी रहेगी। तो क्योंकि पार्शियल ओवरलैपिंग ही होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो पीजेड में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये है पीजेड, ये भी पीजेड है, यहाँ पर ये px है हमारे पास, और ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये py हैं। तो pz और pz के बीच में ही सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। इसका मतलब pz क्या है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और py और px में क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इन्हीं टर्म्स को हमें देखना है। सी फर्स्ट वी आर सेइंग pz ओवरलैपिंग। This type of overlapping takes place between half-filled p orbitals of two different atoms. Okay, this one is pz of first p orbital. This one is second pz of second p orbital. तो जब ये दोनों एक्सिस के थ्रू एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग कौन सी है, pz ओवरलैपिंग, और ये एक्सिस के थ्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग कहाँ होगी, ये px और py में होगी। कैसे होगी, तो उसको भी हम देखते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द एटमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड due to sidewise overlapping consists of two saucer type charged। मतलब क्या है इसका, ये देखना है हमको। क्लाउड above and below the plane of the participating atoms। ओके, देखिए ये है हमारे पास px ऑर्बिटल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होंगे तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो क्लोज आएंगे तो इस टाइप से मर्जिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट मर्जिंग नहीं हो सकती। डायरेक्ट मर्जिंग क्यों नहीं हो सकती, जैसे pz और pz में हो गया, वैसे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है, सी नेक्स्ट फिगर। सो इन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल एक ओवरऑल हम ओवरलैपिंग देखते हैं। इस ओवरऑल ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये हो गया हमारे पास z एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये y एक्सेस, और थर्ड हो गया x एक्सेस। इनमें जब हम p ऑर्बिटल्स को बनाएंगे तो ये p ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, इस टाइप से इनमें हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट समझना है आपको एक्सियल और साइडवाइज ओवरलैपिंग में, कि जब pz और pz इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है pz और pz के बीच में, तो ये एक्सिस के थ्रू होगी, और जब एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, यहाँ की बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, इस बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पर pz और pz
दोनों ही क्या हुए, एक्सिस के थ्रू आए एक दूसरे के पास, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, इस पार्ट में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होगी, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस हैं, इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं पी वाई इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, बट ये दूर से ही ओवरलैपिंग होगी, इसमें डायरेक्ट मर्जिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो दो पी जेड ऑर्बिटल्स हैं, ये पी जेड ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। ठीक इसी टाइप से इनके बीच में होगी ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग भी क्या होगी, दूर से ही होगी। तो यहाँ जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जेड एक्सिस और यहाँ पर हो रही है ओवरलैपिंग, तो ये हो गया पैरेलल। इसी टाइप से ये हो गया हमारा दूसरा पैरेलल। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। इस पैरेलल ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या है, पाई बॉन्ड। तो सिंपली यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर बनेगा पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, सो दिस इज द ओवरलैपिंग। अब इसके बाद हमको देखना है ओवरलैपिंग के बाद नेक्स्ट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ओके, सो सिंपल है सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। फर्स्ट, it is formed by axial overlapping and pi bond is formed by sidewise or parallel overlapping. See, in sigma bond overlapping takes place at larger extent. Larger extent से मतलब क्या है, ये जब हम एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो ये देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर मर्जिंग होगी, बट जब हम इसको पैरेलल कराएंगे तो पैरेलल में तो कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हो गया ग्रेटर एक्सटेंट, यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत ही कम हो रही है, ठीक है, एट लोअर एक्सटेंट। सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिमेट्रिकल से मतलब क्या है, तो ये देखिए सिमेट्रिकल से मतलब ये है कि ये बनाया हमने पी जेड, ये बनाया हमने पी जेड, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा और इनका एक्सिस कौन सा है, ये होगा इनका एक्सिस। तो इस एक्सिस के चारों तरफ ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड तो इस टाइप से बनेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये हो गया इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ पर इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड क्या है, इसके जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स कौन से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में ही शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। तो ये क्लाउड्स क्या होंगे, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एक्सिस। तो इस एक्सिस के एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया कि ये सिमेट्रिकल है और इसमें क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे। थर्ड, नेक्स्ट डिफरेंस इज देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन क्यों पॉसिबल है, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। ये अब देखिए ये बनाया हमने सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में ये हो गया न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। आप चाहो तो इसको चारों तरफ घुमा सकते हो, क्योंकि दोनों क्या हैं, बिल्कुल दोनों सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। आप इसको सिंपल सा क्या समझ सकते हैं, सिंपल से ये है कि आप दो बॉल लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक का दो बॉल लेना और उन दोनों बॉल्स में एक एक होल करके उनको एक स्टिक के थ्रू कनेक्ट कर देना, ठीक है। करना क्या है, ये ऐसी दो बॉल्स लेना है और यहाँ पर एक दोनों को स्टिक के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। अभी एक बॉल को फिक्स करिए, दूसरी बॉल को रोटेट करो, सो यू कैन रोटेट, क्योंकि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ हम एटम को रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है इनके बीच में। अब ठीक वही काम करो, आप बॉल को लीजिए, अब बॉल में एक स्टिक की जगह क्या करना है, दो स्टिक लगा देना है, ठीक है। जब आप दो स्टिक के थ्रू बॉल को कनेक्ट करोगे तो फिर बॉल को आप रोटेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे दोनों स्टिक एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो इसको जैसे ही आप रोटेट करने की कोशिश करोगे ये थोड़े से इस तरीके से आएंगे और फिर
रोटेट नहीं होने देगा। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड अकेला भी हो सकता है और पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद फिर पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्लोज आने पर क्या होगा, सबसे पहले वो एक्सिस के थ्रू एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड। तो डिफरेंस ये है, सिग्मा बॉन्ड अकेला भी बन सकता है और सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई भी मिल सकते हैं। तो सिग्मा और पाई को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसका सिंपल सा तरीका लेना है कि यदि हमारे पास दो एटम हैं, सपोज दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकेंड कार्बन, इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन ट्रिपल बॉन्ड में एक होगा सिग्मा और 2 बॉन्ड क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। यदि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो इन डबल बॉन्ड में एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। और यदि इन दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड बनता है सिग्मा, उसके बाद बनता है पाई। और सिग्मा अकेला भी हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड अकेले बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड अकेले भी हो सकता है और पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कंपलसरी है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनेगा। तो यदि किसी एटम में पाई बॉन्ड, किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां सिग्मा बॉन्ड भी होगा, क्योंकि पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा? तो सिग्मा बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में यदि सिग्मा बॉन्ड है तो जरूरी नहीं कि उसमें पाई भी हो, पाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सिग्मा के लिए कंपलसरी नहीं है पाई को रखना, पर पाई बॉन्ड के लिए कंपलसरी है कि पहले सिग्मा बनेगा। और लास्ट डिफरेंस है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड s orbital can participate while in pi bond s orbital cannot participate, क्योंकि पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? px px एंड py py के बीच में, इसमें s orbital participate नहीं करेगा। So that's all for today's discussion. If you have any doubt, you can contact to my personal WhatsApp number. Thank you. If you like this lecture, please like, share and subscribe.